Jai Hind everyone, respected dignitaries, esteemed speakers, faculty members and dear students. I, Zoya Rao, student of BLLB 7th semester, welcome you all to this seminar on the crucial and thought-provoking topic role of higher education institution in elimination of gender-based violence, challenges and perspectives, organized by Internal Complaint Committee in association with Sardar Patel Subharti Institute of Law and District Legal Service Authority, District Court, Meerut, to honor the International Human Rights Day, a duty that serves as a global reminder of the inherent dignity and rights of every individual regardless of race, gender, nationality, or belief, observed annually on 10th December. This day marks the adoption of the Universal Declaration of Human Rights in 1948, a document that laid the foundation of modern human rights principles and continues to inspire movement for justice and equality worldwide. As we all know, gender based violence is a prevalent issue that goes beyond borders, cultures, and societies. It undermines the principle of equality, dignity, and human rights. As we gathered here today, it is essential to reflect on the alarming statistics, to reflect and realize consequences of the social malaise which continues to affect millions, particularly women. Higher education institutions hold a unique position in society, not only as centers of learning but as agents of social change. Therefore, they bear an immense responsibility to lead the charge against gender based violence, fostering an environment where respect, equality, and inclusivity are paramount. Thus, today's seminar is an opportunity to explore the multidimensional role of higher education in combating this issue. Let us commit ourselves to meaningful discussion today with the hope that they will sow seeds of change in our communities and beyond further ado, let me invite our dignitaries of the day on the stage to form the dais. As a token of our appreciation, I request Honorable Professor Dr. Shailya Raj Ma'am, CEO, Subharti University, to felicitate respected Dr. Meenakshi Bharala Ma'am, Member State Women Commission, UP, with the plant as it is a symbol of growth and sustainability. Now, I request respected Dr. Pradeep Raghav Sir, Dean, Student Welfare, Subharti University, to felicitate respected Shri Udayveer Singh Sir, Additional District Judge and Secretary of District Legal Service Authority, with the planter. Now, I request Professor Dr. Reena Bishnoi Ma'am, Chairperson ICC, to felicitate Honorable Professor Dr. Shailya Raj Ma'am, CEO, Subharti University, with the planter. Now, I request Dr. Shashi Raj Teotia Sir, Chief Proctor, to felicitate respected Dr. Devendra Sarup Sir, Pro Vice Chancellor, Subharti University, with the plant. Now, I request Dr. Prem Chandra Sir, Associate Professor, Faculty of Law, to felicitate respected Professor Dr. Reena Bishnoi Ma'am, Presiding Officer, ICC, with the plant. Let us now light the ceremonial lamp to dispel darkness and spread the light of knowledge and wisdom as a tribute to Mother Saraswati, the goddess of knowledge. I now request all the dignitaries to light the lamp and inaugurate this program. Thank you. We all feel blessed indeed. Now, I request Professor Dr. Reena Bishnoi Ma'am, Chairperson, ICC, for introductory speech and a keynote address. Jai Hind to one and all present here in the Sardar Patel Subharti Institute of Law. In this Sardar Patel auditorium, I, Dr. Reena Bishnoi, feel privileged to have been given opportunity to welcome address to everyone on the occasion of this one-day seminar on the role of higher education institution in eliminating gender-based violence, challenges and perspective, organized by Internal Complaint Committee, Swami Vivekanand Subharti University, in association with
Sardar Patel Subhati Institute of Law, and District Legal Service Authority, District Court, Meerut, on the occasion of International Human Rights Day. Today is also a concluding day of 16-day activism against gender-based violence as per the University Grant Commission mandate from 25th November to 10 December 2024. This activism started from 25th November as it is observed as International Day for Elimination of Violence Against Women and concluded on 10 December. During this period, Internal Complaint Committee members actively organized the awareness sessions related to POSH Act, Domestic Violence Act, POXO Act, Bharatiya Nyaya Sanhita, Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita among the students, teaching staff and non-teaching staff and sensitize them. This seminar aimed to highlight the pivotal role of higher education institution in addressing gender-based violence by exploring challenges, fostering gender equity, and promoting actionable strategies for safer and more inclusive academic environments. Bringing together experts, academicians, policymakers, and students, it seeks to advance education, awareness, and policy driving solution to is presiding human right concern. Violence against women is an obstacle to achievement of the objective of equality, equity, development, and peace. Violence against women both violates and impairs or nullify the enjoyment by women of their human rights and fundamental freedoms. Gender-based violence violates fundamental human rights and it is a major barrier in achieving the gender equality. The United Nations regards violence against women as one of the most significant violation of women's rights across the world. It is not the problem of India, it is the problem of the whole world. Women are entitled to full enjoyment and equal enjoyment of their human rights free from all the discrimination. So this is one of the important issue. On the occasion of this national seminar, I warmly welcome our chief guest, respected Dr. Meenakshi Bharala ji, Member State Women Commission, Uttar Pradesh. Respected Shri Udaybir Singh ji, Additional District and Session Judge and Secretary, District Legal Service Authority, District Court, Meerut. Our Honorable Pro Vice Chancellor Sir, Dr. Devendra Swarup Sir, Swami Vivekananda Subhati University. Our Honorable CEO Ma'am, Professor Dr. Shalya Raj, CEO, Swami Vivekananda Subhati University. I also welcome Shri Jagdish Singh ji, Deputy SP. I also welcome Dr. Pradeep Raghav, Dean Student Welfare, Swami Vivekananda Subhati University. I also welcome Professor Dr. Vaibhav Goyal Bhatia, Dean, Sardar Patel Subhati Institute of Law. In continuation, I also welcome all the HOIs, faculty members present in this Sardar Patel Auditorium. I also welcome all the participants and I hope all the participants will definitely get benefited with this one-day national seminar. So once again, welcome you all with this word, Jai Hind, Jai Bharat. Our program now progressed to the most enlightening part of the day, hearing from our honorable dignitaries in the sequence. Now, we have the privilege of hearing from a remarkable individual who has dedicated her life to empowering women and ensuring that their dreams are not only realized but respected. I would like to invite respected Dr. Meenakshi Bharala Ma'am, Member, State Women Commission, Uttar Pradesh, to address the gathering. भारत माता की वंदे वंदे वंदे। सम्मानित मंचासीन डॉक्टर्स, पदाधिकारीगण कॉलेज के, मेरे समक्ष बैठे डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स, सबको हाथ जोड़ के नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। जिस विषय पे आज हम बात करने वाले हैं, उस विषय पर बात करने की जरूरत पड़ी तो क्यों पड़ी, सोचने का विषय ये है। ऐसा अभी भी क्यों है कि समानता की कमी है। महात्मा गांधी जी कब थे, वो तब भी ये कहते थे कि स्वतंत्रता तब मानी जाएगी जब समाज में महिलाओं को बराबर का दर्जा दिया जाएगा, जब महिलाओं को बराबर का सम्मान दिया जाएगा। वो समय से अब तक बहुत सारे लोगों ने एफर्ट किया और कॉलेजेस द्वारा बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम, बहुत सारे ऐसे सेमिनार ऑर्गेनाइज किए गए जिसमें इन टॉपिक्स पे बार बार बात उठी। लेकिन बात उठी और कहीं ना कहीं वो बात यहाँ हॉल में सब बच्चों ने सुनी, हम लोगों ने बोली, मंचासीन बाकी लोगों ने बोली, और वो यहाँ गेट के बाहर जाते जाते वो बात हमने यहीं छोड़ दी।
जिस वजह से हमें बार बार सेमिनार करनी पड़ती हैं, बार बार इतने बड़े कॉलेजेस में इतने एजुकेटेड बच्चों में हमें उस बात को बार बार दोहराना पड़ता है। क्योंकि आज भी जितने बच्चों को हम वो बात समझाएंगे और सिखाएंगे या उसके बारे में बात करेंगे, वो बात धीरे धीरे यहाँ से बाहर जाते ही हम लोग वही वापस अपनी पुरानी चीज़ों पे आ जाएंगे। आप लोगों ने, चूंकि आपके कॉलेजेस में चीज़ें नहीं है तो आपने अभी बहुत नज़दीक से नहीं देखा होगा। मैं महिला आयोग में हूँ तो रोज़ ना जाने कितनी महिलाएं मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, भावनात्मक तौर पे, और कितनी लड़कियां हिंसा का शिकार होती हैं रोज। महीने में और साल की बात नहीं कर रही हूं मैं रोज की बात कर रही हूं। और वो किसको बताती हैं? वो बताती हैं सबसे पहले अपने दोस्त को, माता पिता को बाद में बताती हैं। जो भी उनका मित्र होगा, उनका दोस्त होगा, वो लड़की हो या लड़का हो, जब भी ऐसी कभी समस्या आएगी किसी लड़की को तो सबसे पहले कोशिश करेगी अपने दोस्त को बताने की। आप उनमें से एक दोस्त भी होंगे। आपने दोस्त होते हुए इस विषय पे क्या उसको सलाह दी, उसकी क्या मदद की, आपने कितना उसको समझाया, और समाज में इस बुराई को दूर करने के लिए आपने कितना काम किया। समाज को चलाने के लिए दोनों की जरूरत है, महिला और पुरुष। लेकिन काम में महिला आगे होनी चाहिए, अधिकारों में पुरुष आगे। ये आपकी या मेरी गलती नहीं है, ये हमारा जो सामाजिक ढांचा है उसी में इस तरीके से पहले से बुन के प्लान करके चला आ रहा है, और उसको बदला भी जा रहा है। इस समय पे बदलने का प्रयास भी चल रहा है। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में इस पे सेमिनार्स के अलावा बातें होती हैं, गोष्ठी होती हैं, लेकिन आपका पार्टिसिपेशन उसमें क्या है? अगर आपके आसपास में उस चीज पे चर्चा भी चल रही है तो आपने उसमें क्या बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया? सब लोग सोशल मीडिया चलाते हैं, कई लोग तो रोज वो रील बनाने में का भी शौक रखते होंगे। क्या आपने इस तरीके के संवेदनशील विषय पर कभी कोई रील बनाई है? क्या कभी आपने इस तरीके के विषय पे अपने विचार रखने की कोशिश की है? नहीं, सिर्फ सेमिनार तक ही सीमित रह गया। इसीलिए आज भी इस तरीके की सेमिनार की जरूरत पड़ती है। आप सब अच्छे घरों से आते हैं, अच्छी फैमिलीज से आते हैं, तो आप लोगों को नहीं पता कि नीचे और भी कितना खराब माहौल अभी है। महिलाओं को कितनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि एक शिक्षित व्यक्ति अपना पूरा परिवार बदल सकता है, एक शिक्षित व्यक्ति अपना पूरा समाज बदल सकता है, एक शिक्षित व्यक्ति अपना देश बदल सकता है, और वो शिक्षित व्यक्ति आप लोग हैं। शिक्षा का बहुत बड़ा रोल समाज को बदलने में है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी कहते थे कि प्रयास के बिना कोई सफलता नहीं मिलती, और प्रयास उचित दिशा में हो उस पे हम सबका ध्यान होना चाहिए। मैं पैदा हुई, मैंने खाना खाया, मैं सारे अपने नित्य क्रियाएं करी, उसके बाद बड़ी हुई, फिर मैंने 2 बच्चे पैदा किए या जो भी मेरा रहा, उसके बाद 70-80 साल में मर गई। इसलिए पैदा नहीं होते हैं हम लोग। सबके अंदर महान काम करने की क्षमता होती है, पर सबको करना नहीं है। डॉक्टर साहब क्यों नहीं करना है? क्योंकि आजकल तो इसका जमाना है, सब इसी में लगे रहते हैं। आपका स्क्रीन टाइम अगले 10 दिन नोट कर लीजिएगा, 8 से 7 घंटे स्क्रीन टाइम आपका होगा ही होगा इन दिनों के बच्चों का। और ये बहुत बड़ी विडंबना है। और मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रही हूँ, पूरे अपने जब भारत के बच्चों का एक अभी पीछे एक सर्वे आया था, उस सर्वे का यूथ का स्क्रीन टाइम 7 से 8 घंटे आया है। ये मतलब एक एवरेज निकल के आया है, इससे ज्यादा भी होंगे और इससे कम भी होंगे। 7-8 घंटे एवरेज यूथ का स्क्रीन टाइम है। उसमें कुछ अच्छा भी है, लेकिन 80% उस पर ज्यादातर खराब चीजें भी सर्च की गई हैं, देखी गई हैं, जिससे मानसिक विकृतियां बढ़ी हैं, अपराध बढ़े हैं, और उन अपराधों के कारण
जो समाज का हमारे का ग्रोथ है वो रुका है। समाज के ग्रोथ में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स का सबसे बड़ा रोल होता है और उस रोल को पूरा करने में ये मंचासीन अधिकारी या मैं अकेले कुछ नहीं कर सकते। जब तक मेरे समक्ष बैठे जितने भी बच्चे हैं, डॉक्टर्स हैं, जितने भी वकील हैं भविष्य में आने वाले, वो सब लोग अपने पर्सनल स्तर से खड़े नहीं होंगे, उस पे चर्चाएं नहीं करेंगे। अभी हम लोग जब बैठे थे सब लोग तो अंदर बात कर रहे थे कि अवेयरनेस की कमी है। अगर अवेयरनेस हो जाए तो चीज़ें बहुत बदल जाएं। कुछ एक हेल्पलाइन नंबर के बारे में भी हमने जिक्र किया, तो जैसे हमने 1090 का जिक्र किया, क्या किसी को 1090 की जानकारी है? जितने लोग बैठे हैं, एक 1090 हेल्पलाइन नंबर है महिलाओं के लिए। क्या किसी को जानकारी है? यहाँ पे क्या है? कोई एक व्यक्ति बताएगा खड़ा होके? है तो बेसिकली लड़कियों के लिए, लेकिन क्या है, क्या कोई बताएगा? पता कम से कम 20 लोगों को होगा, पर खड़े नहीं होना है, बताना नहीं है। और मैंने इसीलिए पूछा है, प्रॉब्लम यही है, पता है बताना नहीं है। ऐसे आज आप जो सुनेंगे वो सुन के यही छोड़ेंगे, बाहर जाके बताना नहीं है। जिस वजह से हम जिस स्पीड से खत्म कर सकते हैं इस सारी विकृतियों को, वो नहीं होती है। 1090 एक हेल्पलाइन नंबर है लड़कियों के लिए, जिसपे उनको किसी भी तरह का कोई हैरेसमेंट होता है, कोई समस्या है, तो वो 1090 पे कॉल करके बता सकती हैं। उसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि आपके द्वारा आपका नाम नहीं आएगा। मान लीजिए मेरे साथ नहीं, डॉक्टर साहब के साथ समस्या है, तो मैं भी कंप्लेन कर सकती हूँ, क्योंकि डॉक्टर साहब बोल नहीं पा रही हैं, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है। ऐसे आपके पड़ोस में बहुत केस होंगे, मैं बॉयज़ को भी कहूँगी। ऐसे आपके कई फ्रेंड्स होंगे जो चाहते हुए भी कुछ कर नहीं पाती होंगी लड़कियां, आप उनकी मदद कीजिए। आपका नाम भी रिवील नहीं होगा और उस लड़की को मदद हो जाएगी, तत्काल रूप से पुलिस भी आएगी, उसको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, जिस संबंधित अधिकारी की होगी, वो आएगा ही आएगा। 2 बार फॉलोअप भी लिया जाएगा, हर 10वें दिन, फिर 3 महीने बाद, फिर हर 3 महीने बाद। सिस्टम बहुत अच्छा है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके प्रदेश में आई, देश में आई, उन्होंने महिलाओं का स्तर बढ़ाने के लिए, सुधारने के लिए बड़े सारे काम किए हैं। बैंक तक नहीं जाना आता था महिलाओं को, उन्होंने सबके खाते खुलवा दिए जीरो बैलेंस के। आज वो जीरो बैलेंस खाते नहीं है, आज उनमें महिला ने कमा के पैसा डालना शुरू किया है। मोदी जी ने सोचा, उज्ज्वला योजना चलाई, क्योंकि महिलाएं जब चूल्हे पे खाना बनाती थी उन्हें समस्या होती थी। आपकी फैमिली उस समस्या से नहीं गुजरी होगी तो आपको बहुत नहीं पता होगा उसके बारे में। मोदी जी ने स्कीम चलाया, आज इतनी सारी महिलाएं खुश है, सबके घर में गैस हो गई है, सबके घर गैस का चूल्हा दिया गया, जिससे कि वो अपना काम आसानी से कर सके। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इससे पहले किसी सरकार ने सोचा ही नहीं। इतने सारे सेंटर हुआ करते थे, हर तीसरे महीने, चाहे वो पति चाहे सास, हम ये नहीं कहेंगे कौन ले जाता था, चेकअप होता था। लड़की है तो अबॉर्शन कराया जाता था, लड़का है तो अच्छा चलो लड़का है चलिए। लड़कियों को इतनी बुरी स्थिति, 2 साल 3 साल पुरानी बात नहीं, मैं 5-6 साल पहले ये चीजें अभी बंद हुई हैं, पहले तो बहुत थी। आप सबने कोई याद होंगी जब ऐसा आपके पड़ोस में, आपकी फैमिली में हुए होंगे केसेस। तो इतनी अच्छी बेटी को बचाया, और बेटी की एजुकेशन के लिए लोन, बेटी की एजुकेशन के लिए फ्री, प्राइमरी शिक्षा फ्री, उससे ऊपर जिनके आपके कार्ड बने होते हैं उनके कार्ड से लड़कियों को फ्री शिक्षा मिलती है। 1 स्टॉप सेंटर, लड़कियों को पहले रखने की कहीं जगह नहीं होती थी पुलिस थाने में, अब 1 स्टॉप सेंटर है। लड़की अगर वो चली जाती है, नाबालिग है या बालिग है किसी लड़के के साथ, तो आने के बाद उसकी बड़ी दुर्गति होती है। अब 1 स्टॉप सेंटर बनाया सरकार ने, उसमें रहती हैं लड़कियां। तो इतनी सारी योजनाएं, मैं आपको कितनी योजनाएं गिनवाऊं जो इस सरकार ने लड़कियों के लिए चलाई है, जिसमें मिशन शक्ति एक बहुत बड़ी योजना चल रही है। पिंक टॉयलेट्स बने हैं, पिंक बूथ बने हैं। मेरठ में एक्चुअली अभी कम है, बाकी एरियाज में ज़्यादा है, क्योंकि ये एरिया फिर भी रूरल में, एनसीआर में आता है, लेकिन रूरल ही माना जाता है हमारे हिसाब से। तो आप सब लोगों ने क्या इन चीज़ों के बारे में कभी सोचा है? क्या कभी इसमें वर्क करने की कोशिश की है? नहीं। आप लोगों को कहा गया है एक सेमिनार है, उसमें जाना है,
50% बच्चे ये बात करते आए होंगे कि अभी 10 बोलने वाले हैं, बड़ा ही लंबा टाइम लगेगा, अरे भाई जल्दी पीछा छोड़ो, जल्दी जाना है। 50% ये सोच के आए होंगे कि कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा, अपने लिए तो कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। 181 एक हेल्पलाइन है, किसको पता है? चिल्ड्रन हेल्पलाइन है। अभी मेरी यही चर्चा हो रही थी स्टाफ के साथ कि हमारे सुभारती के बाहर बड़े बड़े बोर्ड इन हेल्पलाइन नंबर्स के लगे होने चाहिए। उसका रीजन भी मैंने दिया कि कम से कम जो बोल नहीं पाता है वो देख के समझेगा और इससे फायदा ले सकती है। और इनमें लड़के लड़की सब फायदा ले सकते हैं। हैरेसमेंट ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों के साथ ही होता है, लड़कों के साथ भी होता है। तो आप लोगों को, सब लोगों को अपने आप में जो आपकी क्षमता है उसको 100% देके आपको खड़े होना है। अपने लिए तो खड़े होना ही है, अपने परिवार के लिए, पड़ोसियों के लिए, गांव समाज के लिए, इस देश के लिए भी खड़े होना है। और आप हो सकते हो। हर एक व्यक्ति में एक स्पेशल व्यक्ति छुपा होता है। कुछ लोगों के निखर गए, कुछ लोगों के बिखर गए। जिनके निखर गए उनकी चारों तरफ तस्वीरें लगी हुई हैं आपके, आप हॉल में देख लीजिए। और जिनके बिखर गए वो आप रोज देखते होगे, रोज एक नई करती निकल रही है सामने से। उनको कहीं लगी है क्या तस्वीर? उनको कोई पूछ रहा है क्या? और रीजन है कि हम अपनी क्षमता पहचानने में इतना समय लगा देते हैं कि हम याद ही नहीं। अच्छा, हम भी कुछ कर सकते थे, जब तक आपको याद आता है तब तक समय निकल गया होता है। ये समय सबसे बेस्ट है जिस समय में आप बैठे हो। आप सब लोग, अगर इतने ही लोगों ने मुहिम चलाई ना कि हमको समानता लानी है समाज में, मैं नहीं मानती कि मेरठ का कोई कोना ऐसा रह जाएगा जो तुम लोगों से अनछुआ रह जाएगा। आप मेरठ के 35 लाख जनता को छू सकते हो, सिर्फ आप लोग। आपको किसी की जरूरत नहीं है, पर उसके लिए जहां भी खड़े हो, जिसके पास भी खड़े हो, बहुत पॉजिटिव सोच के साथ, बहुत अच्छे विचारों के साथ, बहुत अच्छी वाइब्रेशन के साथ खड़े हो और आपका चेहरे पे एक चमक हो, आपका नूर हो, आपका कॉन्फिडेंस हो कि हाँ, हम इसमें पहल करेंगे। आप ग्रुप बना सकते हो, ग्रुप बना के उस ग्रुप पे काम कर सकते हो। सोशल मीडिया पे रोज भी नहीं लिखें तो हर 15वें दिन एक विचार लिख सकते हो। जिस दिन आप लोग इतना निकल गए, करने लगे, तो इस तरीके की सेमिनार्स की बहुत लंबी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस समाज का, इस देश का जो भविष्य है, जो इस देश के स्तंभ हैं, वो आप ही लोग हैं। सिर्फ आपसे शुरू होनी है सारी चीजें। तो इसकी एक अच्छी सी पहल हम शुरू करेंगे, एक बढ़िया सा अपने कार्यक्रम, क्योंकि सबके दिमाग में कुछ अलग आता है, सब अलग तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। तो आप सब क्या डिजाइन कर सकते हो इस पे, आप सब क्या सोच सकते हो, इसमें कैसे सुधार हो? मेरे बताने से, किसी के बताने से कभी सुधार नहीं होगा। सुधार तब होगा जब आपने उसमें क्या इनोवेशन किया। नहीं, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। कल मैं महिला जेल का निरीक्षण करने गई थी। मैंने महिलाओं से पूछा सबसे, आप यहाँ कैसे, क्या सब, तो 70% महिलाएं डॉक्टर साहब वो थी वहां पर जिन्होंने कुछ किया ही नहीं है, जो कैसे फंसी हैं। मैंने जब केस लिखवाया, डॉक्टर साहब से मेरी हुई थी झगड़ा, लेकिन मैंने केस इन 5 के नाम लिखवाया, तो डॉक्टर साहब ने तो जो अपना जुगाड़ लगा के बच गए 4 जेल में। तो आप सोचिए। और उनके लिए कईयों ने मुझे कहा कि हमारा कोई पैरोकार ही नहीं है, घर वालों ने उन्हें छोड़ दिया कि तुम जानो। उस समाज के लिए क्या जरूरत उस समाज को आपकी नहीं है? 4,500 पुरुष आपकी जेल में है, महिलाओं की छोड़िए, जिसमें से कल जो मुझे पता चला रेशो, मुझे बड़ा दुख हुआ, 70% लोगों के पास पैरोकार नहीं है डॉक्टर साहब, और वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। उनकी बेल हुई है, उनको 20,000 का जुर्माना देना है, 20,000 का जुर्माना देने वाला व्यक्ति नहीं है उसके पास। चूंकि अवेयरनेस की इतनी कमी है कि हम में से कोई व्यक्ति का ध्यान ही नहीं जाता कहाँ चल क्या रहा है। जिन लड़कियों के साथ रेप हुआ है, उन लड़कियों से बच के निकलने की टेंडेंसी अब भी है हमारी, अभी हम बदले नहीं है। अरे इसके उस लड़की का रिश्ता नहीं लेते हैं, इसलिए रेप के केसेस दर्ज ही नहीं होते। घर वाले इस डर से लड़की को बिठा लेते हैं कि फिर इसका कहीं रिश्ता नहीं होगा।
इक्का दुक्का लड़का खड़ा होकर कहता है कि हम करेंगे इस लड़की से शादी, कोई नहीं करता है। तो ये समाज की मानसिकता कब बदलेगी? जब हम अपने अंदर को बदलेंगे, अपने पेरेंट्स को बदलेंगे, अपने स्वभाव को बदलेंगे और ऐसी महिलाओं का साथ देना शुरू करेंगे। अब महिलाओं ने फिर भी केस रजिस्टर कराने शुरू किए हैं, छेड़खानी के भी कराने शुरू किए हैं, पहले तो हिम्मत नहीं होती थी, रेप के भी कराने शुरू किए हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा सभी स्टूडेंट्स, अगर आपके पड़ोस की, आपके परिवार की कोई लड़की घर से भागती है, घर से किसी लड़के के साथ जाती है, तो कमी सिर्फ उस लड़की में नहीं है, कमी सिर्फ उस परिवार में नहीं है, कमी उसके मित्रों में भी है जिसने उसको सही सलाह नहीं दी कि ये सही और गलत क्या है। कमी उसके पड़ोसियों में, कमी उसके गांव में, कमी उसके समाज में भी है जिसने उसको सही गलत बताया ही नहीं। क्योंकि आजकल हमारा हेल्दी डिस्कशन इस चीज पे होता ही नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या है। हम किसी से इस बारे में बात ही नहीं करते हैं। हमारी बातें बड़ी भूरी भूरी और इसी टाइप के हैं कि पुष्पा 2 शायद एक मूवी आई है ना, वो कैसी है, ये क्या है, वो देखो कितनी जल्दी लड़के बोले यस। इस बारे में तो हम चर्चा करते हैं। और 2.5 घंटा जो तुम्हारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण है ना, आधे से ज्यादा ने लगाया होगा उसको देखने में। उन्होंने तो पैसा कमाया, आपने क्या कमाया? अपना 2.5 घंटा गवाया अपने जीवन का, इस अमूल्य जीवन का। एक दिनचर्या, सिर्फ छोटी सी बात कह के खत्म करूंगी। एक दिनचर्या 7 घंटे से ज्यादा सोना नहीं, चाहे कितना भी समस्या हो। किसी व्यसन में पड़ना नहीं और गलत चीजों में, गलत आदतों में। और सबसे बड़ी चीज जो आपको अपने ऊपर वर्क करना है, अपना कॉन्फिडेंस लेवल खुद बनाएं। लड़कियां जितनी बैठी हैं, बिल्कुल डरना घबराना बंद करें। जो आपकी तरफ देखे आप उसका जवाब देना जाने। क्योंकि आप ही लड़कियां नहीं, मैं भी लड़की थी, कॉलेज भी गई, स्कूल भी गई और बहुत सारी समस्याएं हैं। शायद उस समय और ज्यादा हुआ करती थी समस्याएं। तब तो गुड टच बैड टच पढ़ाया नहीं जाता था, पता ही नहीं होता था क्या है। अब तो बहुत अवेयरनेस हुई है इन चीजों को लेकर, बहुत सारी चीजों पे बात भी होती है। आपके पड़ोस में भी बच्चे होंगे, उनको भी बताइएगा। पेरेंट्स आजकल बताना भूल जाते हैं क्योंकि उनके पास समय नहीं है, या तो वर्किंग है या तो वो फोन में। मम्मियों को तो यही है बहन के सब्जी क्या बनी, जेठानी के क्या बनी। और ये सच में समाज की कड़वी सच्चाई है। मदर्स को बच्चों के लिए टाइम ही नहीं है, सिर्फ कपड़े धोना, खाना बनाना उनको लगता है मेरी ड्यूटी पूरी। कहीं ना कहीं काउंसलिंग की जरूरत पेरेंट्स को भी है इस समय पे। मैं डॉक्टर साहब से अभी जिक्र भी कर रही थी बाबूजी से कि कहीं ना कहीं काउंसलिंग की जरूरत पेरेंट्स को भी है, क्योंकि पेरेंट्स भी भूल गए हैं हमें अपने बच्चों को संस्कार देने हैं, जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं बनी हैं। पहले से अब में बहुत सुधार है, ऐसा नहीं है कोई सुधर नहीं रही है चीजें, बहुत सुधार हुआ है, लेकिन और हो सकता है, हम लोग कर सकते हैं। तो बस इसी शुभकामनाओं के साथ कि इनमें से कोई बच्चा कल मुझे जरूर खड़ा मिले कि हाँ वहां से हमने इंस्पिरेशन लिया और हमने इस पे वर्क किया, हमने अपने इंस्टा स्टोरी इस पे अपलोड की कि कैसे हम लड़कियों के साथ समानता का व्यवहार कर सकते हैं। और अगर करते हैं तो उसको शेयर कीजिए, सब लोग उस पर वर्क करेंगे तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। बाकी डिसिप्लिन तो मैं देख रही थी, 3 टीचर्स को खड़े होकर घूमना पड़ रहा है आपको चुप करने के लिए। तो आप इसको भी सुधारिए कि अगली बार जब कोई सेमिनार हो तो किसी टीचर को आपके बीच में खड़ा ना होना पड़े। उनको इतना कॉन्फिडेंस हो कि जब आप बैठेंगे तो आप बिल्कुल बात नहीं करेंगे और सामने वाले व्यक्ति को इज्जत फील कराएंगे। जब कोई बोल रहा होता है और सामने कोई 2 लोग बात करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को, बोलने वाले व्यक्ति को, चाहे आप भी हो उसमें, उसको थोड़ा सा इंसल्टिंग फील होता है। उसका रीजन है, उसको लगता है मैं अच्छा नहीं बोल रहा हूँ, उसको कॉन्फिडेंस भी लेवल डाउन होता है कि शायद मैं कुछ कहीं गड़बड़ बोल रहा हूँ। तो इसलिए जब भी कभी कोई सामने बोले तो इतनी देर आराम से चुप बैठ के उसको सुनेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और उस व्यक्ति को भी अच्छा लगेगा और आपकी बाहर जाके तारीफ भी करेगा कि उस कॉलेज के बच्चे बहुत अच्छे थे। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम के आयोजकों का, जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे मौका दिया कि संवेदनशील टॉपिक पे मैं बात कर सकूं। और मैंने बिल्कुल आपके कोशिश किया है दिल को छूने की, बाकी तो आप पे डिपेंड करेगा आप इसको किस तरीके से लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी डॉक्टर्स का, मंचासीन अतिथियों का, आयोजकों का, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना समय मुझे दिया और मेरी बात को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। Now, I request respected Shri Udayveer Singh Sir, Additional District Judge and Secretary, District Legal Service Authority, Meerut, to grace the stage and share your thoughts. मंचासीन डॉक्टर मीनाक्षी मैम,
सदस्य राज्य महिला आयोग, पूर्व वाइस चांसलर सर डॉक्टर देवेंद्र स्वरूप जी एंड प्रोफेसर रीना जी एंड डॉक्टर वैभव सर, हॉल में उपस्थित फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स, आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स दिवस है। इसके लिए पहले तो आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। ह्यूमन राइट्स क्या है, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। संक्षिप्त में केवल इतना समझ लें कि ह्यूमन राइट्स वे राइट्स हैं जिनके बिना जीवन गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जो राइट्स की आवश्यकता है वो सभी ह्यूमन राइट्स हैं। बेसिकली इसकी स्थापना 1948 में यूएन डिक्लेरेशन से हुई और इसकी औपचारिक घोषणा तो 1950 में हुई थी। ह्यूमन राइट्स को अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर है वो सभी के सभी आप समझ लें कि वो ह्यूमन राइट है। ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स में बेसिकली अंतर थोड़ा सा ये है कि ह्यूमन राइट्स जो हैं जीवन जीने के लिए हैं और फंडामेंटल राइट्स बेसिकली वो स्टेट के अगेंस्ट हैं। अगर स्टेट हमें समानता नहीं देती है, स्टेट की डेफिनेशन भी कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, यूनिवर्सिटी भी आपकी एक स्टेट की डेफिनेशन में आती है, तो हम उन राइट्स को पूरा करवाने के लिए डिफरेंट रिट के माध्यम से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि अगर समानता हमको परिवार में नहीं मिल रही है, समानता अगर हमको समाज में नहीं मिल रही है, वो चीज़ें फंडामेंटल राइट से गवर्न नहीं। अब बात यह है, आज का जो टॉपिक है रोल ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन एलिमिनेशन ऑफ जेंडर वाइज वायलेंस। अब हम बात इस बात की है कि समानता से ही स्टार्ट होता है ये बात। जेंडर जो लिंग है, लिंग के आधार पर जो समाज में विभेद है उसके कारण जो हिंसा है, लिंग आधारित हिंसा है, मतलब किसी एक की वजह से नहीं है कि मिस्टर एक्स ने कोई हिंसा की है, वो एक ग्रुप लिंग आधारित ग्रुप के लिए हिंसा है। और ये अगर हम देखें तो लिंग आधारित जो हिंसा है वो आपको सबसे ज़्यादा परिवार में ही मिल रही है, हमें अपनों से मिल रही है और पति पत्नी को। और अगर हम इस बात को भी देखें तो ये हिंसा जन्म से पूर्व से स्टार्ट हो जाती है। समाज में आज भी, जैसा कि मैम ने कहा था, कि स्त्री और पुरुष की समानता अभी नहीं हो पाई है और जो होनी चाहिए। जन्म से पूर्व गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग जांच कराना, भ्रूण हत्या करना, ऑल्दो इस पर बहुत सारे कानून हैं। और उसके बाद बेटे की लोगों की चाह होना, दूसरा बच्चों में परिवार में ही अंतर महसूस करना पेरेंट्स द्वारा, ये लड़का है तो इसको ये दिया जाएगा, लड़की है तो नहीं दिया जाएगा, लड़की है तो उस पर ये लिमिटेशंस होंगी, लड़का है तो लिमिटेशंस नहीं होंगी। तो बेसिकली ये जो डिफरेंसेस हैं यही जेंडर के आधार पर है। केवल इसमें महिलाओं के प्रति हिंसा की ही बात नहीं है, जेंडर बेस्ड आधार पर पुरुषों के साथ भी हिंसा है। समाज में एक वर्ग
लिंग आधारित एक और है ट्रांसजेंडर, उनको भी के खिलाफ भी ऐसी चीज असमानता का व्यवहार है। कुछ समाज में वर्ग ऐसा है जो समलैंगिक है, तो समाज उनको उस आधार पर क्योंकि समलैंगिक है उनके साथ असमानता का व्यवहार करता है। तो पहले तो हमें समझने की जरूरत ये है कि हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे देश में जो ये असमानता है केवल हमको इसको दूर करना है। और ये असमानता केवल दूर कैसे हो सकती है? ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होकर। आप जैसे मैडम ने कहा कि साहब बात यहाँ हॉल में ना रह जाए, आप बात सुने, अपनों से शेयर करें, मित्रों से शेयर करें, जो यहाँ नहीं है उनके साथ शेयर करें। हम एक दूसरे को जागरूक करें, जागरूकता से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, समाज में सुधार ला सकते हैं, समाज में समानता ला सकते हैं। लिंग के आधार पर जो असमानता है, उस असमानता के कारण जो हिंसा है, उस हिंसा को हम खत्म कर सकते हैं। हमारे देश में 2006 में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया। उसके अलावा आईपीसी में महिलाओं के प्रति जो भी अपराध हैं उनको भी डिस्क्राइब किया गया है। और ज़रूरत केवल इस बात की है कि हम अपनी सोच को बदलें, परिवार की सोच को बदलें, बहन भाई में अंतर ना करें। अगर हमारे परिवार से ही अंतर खत्म होना शुरू होगा, परिवार ही समाज की सबसे छोटी यूनिट है, अगर परिवार में सुधार शुरू होगा तो निश्चित रूप से समाज अपने आप में सुधरेगा। बात है कि आपके जितने भी उच्च शिक्षा संस्थान हैं, हम उनमें इस लिंग आधारित हिंसा को कैसे खत्म कर सकते हैं। तो जैसे कि आज आपकी यूनिवर्सिटी ने ये कई दिनों का प्रोग्राम है, शायद मैं अभी देख रहा था कहीं 16 दिसंबर से ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, 16 डेज का, और ये आज के दिन में समाप्त हुआ। इस टाइप के सेमिनार हों, केवल सेमिनार ना हो, इस टाइप के जो हम पंपलेट बनवाएं, पंपलेट को डिफरेंट जगह वो होर्डिंग्स वगैरह के जैसे बहुत सारे लगे भी हैं यूनिवर्सिटी में, उनमें लगवाएं। रिसर्च स्टूडेंट्स हैं, उनसे ज़रूरी नहीं कि वो लॉ के स्टूडेंट्स हों, किसी भी, चूँकि ये टॉपिक बेसिकली लॉ का नहीं है, ये टॉपिक तो बेसिकली समाज का है। सोशोलॉजी डिपार्टमेंट है, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे हम स्टूडेंट्स को ऐसे टॉपिक देके उनसे वो उनके लेख इनवाइट करें, उन लेखों को जितनी भी मैगजीन्स निकलती हैं उनमें प्रकाशित करें। तब एक दूसरे के ज्ञान का जब प्रचार प्रसार आगे होगा, ये उच्च शिक्षा संस्थान के माध्यम से किया जा सकता है। स्टूडेंट्स हैं, हर परिवार से आते हैं, हर समाज से हैं। जब यहाँ पर वो ये चीज़ों को सीखेंगे तो अपने निश्चित रूप से अपने परिवार में, अपने समाज को वो सुधार की तरफ एक पहल कर सकते हैं। और कुल मिला के अपने अंदर एक बात कर लें कि हमें सुधरना है, हमें अंतर नहीं करना है, तो चीज़ें अपने आप स्ट्रीमलाइन होना शुरू हो जाएंगी। और जैसा कि मैम ने कहा था कि ऐसी सेमिनार की फिर शायद आवश्यकता ना पड़े। थैंक यू मैडम। Thank you so much, sir, for your inspiring words. Now, I humbly request Dr. Pradeep Raghav, sir, Dean, Student Welfare, Subhati University, to bless us with inspiring thoughts. जय हिंद। आदरणीय आज की हमारी मुख्य चीफ गेस्ट हमारी मीनाक्षी भराला जी, जो कि मेंबर स्टेट वुमेन कमीशन के हैं, हमारे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज उदयवीर सिंह जी, और इसके अलावा हमारे प्रो वाइस चांसलर सर। एक्चुअली मैं बिल्कुल अचानक आ गया। मीनाक्षी भराला जी जो हैं, वो उनके दोनों बच्चों का मैंने यहीं पर सुभाष डेंटल कॉलेज में ट्रीटमेंट किया है, तो उन्होंने मुझे बुला लिया यहाँ पे, तो बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड में होकर आया था। लेकिन इस पे बावजूद में मैं 2-3 चीज़ें कहना चाहूँगा कि इस टाइम पे हमारा समाज
तीन जगह पे बटा हुआ है। तीन जगह पे मतलब बटने का मतलब, जब हम बात करते हैं जेंडर बेस की, जेंडर बेस का मतलब है कि अगर हम बात करें शहरों की, शहरों के अंदर इस टाइम पे एक्चुअली जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बहुत कम है। रीज़न है कि हमारे यहाँ पे सोशल मीडिया से, हमारे सरकार की जो एक्टिविटीज़ है उसकी वजह से अब डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। शहरों के अंदर जो बच्चे कॉलेजों में पढ़ रहे हैं उनके अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये प्रॉब्लम आती है आज भी गांव और कस्बों में, आज ये प्रॉब्लम ज्वलंत है, वैसी की वैसी है, जैसा जिसकी वजह से ये पूरा प्रोग्राम हमारी सरकार चला रही है। तो मेरा सबसे पहले कहना यह है कि जो आप लोग पढ़ रहे हैं, जो हमारी हायर एजुकेशन में पढ़ रहे हैं, उनको ये चीज़ें नीचे तक ले जानी पड़ेंगी। जो भी बच्चे आप गांवों कस्बों से, या आपके कोई रिलेटिव है जो वहाँ रहते हैं, आपको उनसे, उनके पास जाके उनको समझाना पड़ेगा। अगर आप समाज में ऐसी कोई चीज़ देखते हैं जहां आपको लगता है कि इस तरह का कोई भेदभाव लड़की या लड़के के बीच में हो रहा है, तो आपको ये चेतना जगानी है सबके अंदर। एक्चुअली ये आप लोग जो है, जो हम जो सेमिनार्स कराते हैं, आप लोग हमारी यूनिवर्सिटी के टॉर्च बियरर्स हैं, जो इस मैसेज को, हमारी यूनिवर्सिटी के मैसेज को, हमारी सरकार के मैसेज को समाज में फैलाएं और निचले स्तर तक फैला सके कि हमारे कहीं भी समाज में मेल और फीमेल, लड़की या लड़की के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो मेरा बस यही कहना है कि आप हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से टॉर्च बियरर बने। समाज के अंदर जहां पे भी आपकी फैमिली में आपको कहीं लगता है कि ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, आप जरूर उनको इसके बारे में ज्ञान दें और उनको अवेयर करें कि आज का समाज में इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन की कोई भी जरूरत नहीं है, ना कोई जगह है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आगे आने वाले वक्त में महिला सशक्तिकरण इतना स्ट्रांग हो गया है, तो हो सकता है कि महिलाएं ही सब जगह आगे निकल जाएंगी। मैं इसका सिंपल सा एग्जांपल आपको ये देता हूं कि जब हम जितने भी हमारे कंपटीशन बेस्ड एग्जामिनेशंस होते हैं, मैं वहां आजकल देख रहा हूं, जैसे नीट है, हम लोग जैसे मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, अगर हम नीट की बात करते हैं तो वहां पे आजकल 70% MBBS साइड में भी, BDS साइड में भी, वहां पे लड़कियां ज़्यादा अच्छा कर रही हैं। इसके अलावा जब मैं आर्मी की बात करता हूँ, हर जगह पे, सब जगह जो भी लोग इंटरव्यू लेते हैं वो साफ साफ कहते हैं कि लड़कियों की कैपेबिलिटीज बढ़ती जा रही है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। बल्कि मैं इस बारे में लड़कों को जरूर कहूंगा कि वो लोग भी थोड़ा सा अपनी मेहनत करने की क्षमता को बढ़ाएं, ताकि वो भी उस लेवल पर आ सके। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। Now, I request Honorable Dr. Devendra Sarup Sir, Pro Vice Chancellor, Subhati University, to bless us with his words of wisdom. जय हिंद। डॉक्टर मीनाक्षी, श्री उदयवीर सिंह जी, डॉक्टर राघव, डॉक्टर रीना एंड डॉक्टर बैकल सर, all dignitaries sitting here and students, जेंडर बेस्ड वायलेंस के ऊपर और ह्यूमन राइट्स डे के ऊपर अभी डॉक्टर मीनाक्षी जी ने, उदयवीर सिंह जी ने काफ़ी बताया, और हमारे डॉक्टर राघव ने भी इतनी अच्छी बातें बता दी आप लोगों को। मुझे सिर्फ एक ही बात कहनी है, अवेयरनेस या जागरूकता जिसके बारे में काफ़ी कहा गया है, वो बहुत ही ज़रूरी है और हर लेवल पर ज़रूरी है। अगर हम सब लोग जो भी कुछ जानते हैं, समझते हैं, अगर उसको हम प्रैक्टिकल करना शुरू कर दें, उसको यूज़ करना शुरू कर दें, जैसे हेल्पलाइन नंबर्स हैं जो बताए हैं मैडम ने, अगर इन हेल्पलाइन नंबर्स को दूसरे भी यूज़ कर लें, अगर हम अपने पड़ोसी के लिए भी यूज़ कर लें जो अपने आप नहीं बोल सकता, नहीं बता सकता, बहुत ही अच्छी बात है। तो बाकी ग्रासरूट लेवल से ही सारी चीज़ें शुरू होती हैं। जितना हम इन चीज़ों को यहाँ सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उतना ही हम बाहर फैलाते रहें तो बहुत ही अच्छी बात होगी। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग करेंगे। आप सब लोगों के अंदर क्षमता है इस सब चीज़ों को फैलाने में। हमारे स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, हमेशा रहा है, हर चीज़ में रहा है, इतनी बड़ी रेवोल्यूशंस में रहा है। तो ये तो एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम वाकई में प्रोत्साहन कर सकते हैं। बस मुझे और कुछ नहीं कहना है। धन्यवाद, जय हिंद। Thank you so much, sir, for your blessings. Now, I request the dignitaries to kindly felicitate our honorable guest of the event, respected Dr. Meenakshi Bharala ma'am, member, State Women Commission, Uttar Pradesh, with a token of respect. Jai Hind, one and all present on the dais and off the dais. I have been given two responsibilities
दो जिम्मेदारियां दी गई हैं, उन जिम्मेदारियों पर आगे चलने से पहले चूँकि आज का कार्यक्रम 16 दिन का जो जेंडर बेस्ड वायलेंस के एलिमिनेशन के लिए कार्यक्रम है उसका कंक्लूडिंग डे है, तो पहले मैं निवेदन करूंगा जो हमारी आईसीसी कमेटी के मेंबर्स यहाँ मौजूद हैं, कृपया वो एक बार सामने आएँ। मैं चाहता हूं कि आईसीसी के मेंबर यहाँ पर सामने आएँ। हमारे विश्वविद्यालय के सभी छात्र और जो यहाँ पर शिक्षक मौजूद हैं उनको मालूम होना चाहिए कि हमारी आईसीसी के, क्योंकि कुछ मेंबर्स जो हैं वो यूनिवर्सिटी की डिफरेंट एक्टिविटीज़ में बिजी हैं, वो आज नहीं आ पाए हैं, लेकिन जो हमारे मेंबर हैं वो डिफरेंट सेगमेंट्स में से हैं। चेयरपर्सन स्टेज पर डॉक्टर रीना मैडम आपके सामने हैं। नर्सिंग कॉलेज से हमारे गर्ल्स हॉस्टल की सीनियर वार्डन मैडम, हर्षवर्धन जी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हॉस्टल स्टाफ के अंदर से, और ब्रह्मपाल जी, बाकी टीचिंग स्टाफ मेंबर्स डिफरेंट कॉलेजेस जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज से लोग हैं, मैनेजमेंट कॉलेज से लोग हैं, और डिफरेंट कॉलेज से हमारे यहाँ पर जो एक कमेटी बनी है। तो सबसे बड़ा पर्पस इस कमेटी का संस्था में किसी भी तरीके का जेंडर बायसनेस या जेंडर बेस्ड वायलेंस उसका एलिमिनेशन है। ये कमेटी कॉन्फिडेंशियल रूप से अगर यदि कोई भी कंप्लेंट आती है, ऐसा नहीं है ये कमेटी सिर्फ वीमेन एम्पावरमेंट के लिए या वीमेन रिलेटेड कंप्लेंट्स को सुनने के लिए है। अगर यदि कोई मैन, कोई ट्रांसजेंडर या कोई अदर सोसाइटल ओरिएंटेशन या अदर जेंडर का व्यक्ति अपना कोई भी कंप्लेंट आईसीसी को देता है, जो आज की तारीख में इंटरनल कमेटी के नाम से जानी जाती है, तो उसकी न केवल सुनवाई होती है, उसकी जानकारी पूरी गोपनीय रहती है और उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है अगर यदि मालूम पड़ता है द परपिटेटर इज एक्चुअल परपिटेटर। तो सबसे पहले जो हमारी चेयर प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं आईसीसी की, इस कार्यक्रम के अंदर उन्होंने 16 दिन तक कार्यक्रम कराए, जिसके अंदर उनकी टीम के मेंबर्स के द्वारा यूनिवर्सिटी के डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं, फैकल्टीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उसके अंदर कार्यक्रम होते रहे। आज का चूँकि बात की गई कंक्लूडिंग रिमार्क की, आज के दिन 3 चीज़ों पर बातचीत कर रहे हैं। एक बात आप लोगों से जुड़ी है, दूसरी बात भी आपसे जुड़ी है, और चूँकि आप यूनिवर्सिटी के अंदर हैं तो तीसरी बात भी आप लोगों से जुड़ी है। यू आर ह्यूमन बींग्स, यस? आवाज़ नहीं है, इसका मतलब सभी नहीं है। यू आर ह्यूमन बींग्स, आपके ह्यूमन राइट हैं, लेकिन आपके ह्यूमन राइट कब हैं? जब मेरे की ह्यूमन ओब्लिगेशंस हैं, मेरी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। मैडम ने अपना वक्तव्य देते हुए बात कही कि जिस दिन सेमिनार के अंदर टीचर्स को खड़ा ना होना पड़े, आप आपस में बातचीत ना करें, उस दिन लगेगा कि आधा उद्देश्य पूरा हो गया। कहने का मतलब हम अपने ऑब्लिगेशंस को समझ गए। आपने जिस दिन ऑब्लिगेशन को समझा उस दिन मेरा ह्यूमन राइट प्रोटेक्ट हो गया, और जिस दिन मैंने अपने ऑब्लिगेशन को समझा उस दिन आपका ह्यूमन राइट प्रोटेक्ट हो गया। आज के सेमिनार में जो यहाँ पर इस मेंबर स्टेट वीमेन कमीशन इतनी छोटी चीज़ नहीं है कि मैडम फ्री हैं और हमने बुला लिया। इसका ऑब्जेक्ट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन दैट इज स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी, उसने अपने ऑब्लिगेशन को समझा कि आप लोगों को सेंसिटाइज किया जाए। लेकिन मैडम ने बात की कि आप लोग आपस में बातचीत में बिजी हैं, इसका मतलब आप अपना ऑब्लिगेशन नहीं समझ रहे। आपको नहीं मालूम ये ह्यूमन राइट हमारे जो बाई बर्थ राइट हैं, जो किसी लॉ के द्वारा हमें कंफर्म नहीं किए जा सकते। वी आर ह्यूमन बींग्स एंड बिकॉज वी आर ह्यूमंस we are entitled to avail these rights and enjoy these rights. These are not transferable, indivisible and irrevocable rights. मतलब इन्हें कोई ट्रांसफर नहीं कर सकता, कोई इंश्योर नहीं कर सकता, और कोई आपको दे नहीं सकता, और आपके डिवाइड नहीं किए जा सकते। आपके ये इनहेरेंट राइट हैं, लेकिन ये तब होंगे जब आपके जो ऑब्लिगेशंस हैं आप उन्हें फुलफिल कर रहे हैं। पहला पॉइंट कि आपके ह्यूमन राइट की बात की गई। दूसरा मुद्दा भी आप लोगों से जुड़ा है, जेंडर बेस्ड वायलेंस। हम समाज में रहते हैं, समाज के अंदर हमारे डिफरेंट सेक्सेस हैं विच आर बेस्ड ऑन बायोलॉजी। बायोलॉजिकली वी कैन डिवाइड सेक्सेस इन 3 पार्ट, men, women and transgenders, but societal orientation and our preferences we can divide genders in different categories, जो कि आज की तारीख में 72 और जेंडर्स को इंटरनेशनल सोसाइटी ने डिफाइन किया है,
और हमारे नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में लगभग 16 और जेंडर्स को एक्सेप्ट किया गया है। लेकिन हम जाने अनजाने के अंदर जब हमें लगता है कोई व्यक्ति, मेरा अपना आर्ट है, मेरा अपना स्क्रिप्ट है, मेरा अपना टैलेंट है, अगर यदि मैं अपने टैलेंट को भी यहाँ पर शोकेस करने के लिए आता हूँ और एक आदमी अगर यदि किसी महिला के किरदार को यहाँ पर आता है तो बाहर निकल के हम उसका मजाक बना देते हैं। लेकिन अगर यदि मेरा सोसाइटल प्रेफरेंस एंटायरली डिफरेंट है, आई एम नॉट स्टेट, माई जेंडर प्रेफरेंस और जेंडर एफिनिटी और सेक्सुअल एफिनिटी इज स्लाइटली डिफरेंट, इट इज नॉट स्टेट, तो मैं मजाक बनाता हूं, तो ये जेंडर बेस्ड वायलेंस है। अगर यदि आप मुझे मेंटल ट्रॉमा देते हैं, आपने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, आपने कमेंट पास किया और कमेंट पास करते हुए निकल गए जो मेरे कानों के अंदर तक गया और मुझे मेंटल ट्रॉमा मिला, जेंडर बेस्ड वायलेंस हो गया। वायलेंस जरूरी नहीं है आपके ऊपर प्रहार करके, आपके ऊपर अटैक करके आपको एक हावी होकर दिखाया जाए। आपका एक स्टेटमेंट जो मुझे इमोशनली किसी भी तरीके से हिट करता है वो वायलेंस का पार्ट है। अगर हम अपने आस पड़ोस में एक ऐसा माहौल बना पाएं, अपने विश्वविद्यालय के अंदर ऐसा माहौल बना पाएं कि हम किसी के ऊपर अननोइंगली भी ऐसा कमेंट ना करें जो उसे इमोशनली हर्ट करता है, तो मुझे लगता है हम आपसे जुड़े हुए, क्योंकि हम सभी इस विश्वविद्यालय समाज का एक प्रतिबिंब हैं। आज स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी के अंदर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि यहाँ पर इंडिया के डिफरेंट स्टेट से और कुछ छात्र इंडिया से बाहर से भी हैं, तो हम एक छोटे इंडिया का यहाँ पर एक प्रतिरूप देख पा रहे हैं। अगर यदि हम सभी लोग यहाँ पर प्रतिज्ञा लेते हैं, यहाँ प्रण लेते हैं कि हम किसी भी तरीके से किसी को आहत नहीं करेंगे, किसी को इमोशनली हर्ट नहीं करेंगे, फिजिकली हर्ट करना तो बहुत दूर की बात है, और जेंडर बेस पर तो बिल्कुल नहीं करेंगे, तो आज का जो दूसरा आपसे जुड़ा हुआ बिंदु है वो पूरा हो जाता है। तीसरा, रोल ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, दिस इज रिलेटेड टू यूएनवी अगेन। यूनिवर्सिटी मीन्स द रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड टॉट, टीचर एंड टॉट। हम पढ़ाएंगे, आप पढ़ेंगे, बट एजुकेशन, सिंपली एजुकेशन, क्लासरूम एजुकेशन, देखा गया कुछ गैप आ गया। 1990 ऑनवर्ड्स इस बात को महसूस किया गया। एक 2000 के अंदर रस्तोगी कमीशन की रिपोर्ट आई और उन्होंने कहा हमें इंजीनियर्स को सोशियोलॉजी पढ़ाने की जरूरत है। बात की गई सोशियोलॉजी पढ़ाएंगे इंजीनियर्स को, समाज के अंदर शायद कोई विद्रोह ना हो जाए, तो उन्होंने इथिक्स के नाम पर एक प्रोफेशनल इथिक्स इंजीनियर्स के लिए डाले। आज की तारीख में बात की गई हम मेडिकल कॉलेजेस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज पढ़ाएंगे। दोज कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज आर नन अदर देन आवर फंडामेंटल ड्यूटीज, और वो जो 11 फंडामेंटल ड्यूटी हैं वो समाज के एक एक व्यक्ति को एक एक व्यक्ति से जोड़ने के लिए बनी है। तो अगर हम रोल ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जिसमें स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय जो 4 पहलुओं पर काम करता है, शिक्षा, सेवा, संस्कार, राष्ट्रीयता, अगर यदि केवल पहला पहलू लेते हैं, सेवा, संस्कार, राष्ट्रीयता, अगर यदि इन तीनों को खत्म कर दें तो शिक्षा केवल और केवल एक पैसा छापने की मशीन, या आज की तारीख में जो बच्चे पेरेंट्स को प्रॉपर रेस्पेक्ट नहीं देते, उनकी फैमिली वैल्यूज को नहीं समझते, और वो पेरेंट्स कहते हैं हम तो अपने बच्चों के लिए सिर्फ एटीएम कार्ड हैं। तो ये ध्यान रखिए, आप अपने पेरेंट्स, अपने समाज, अपने बच्चे, अपने परिवार के लिए अगर यदि पैसा छाप भी लिया तो एक पैसा छापने की मशीन या एटीएम कार्ड से ज़्यादा कुछ नहीं होंगे। अगर आप सेवा नहीं कर सकते, सबसे पहले सेवा स्वयं के लिए, स्वयं की सेवा, आप अपने आप को स्वस्थ रखें। अपने आप को स्वस्थ रखने में पहले आपका ब्रेन क्लीन होना चाहिए, उसके अंदर कोई कंटामिनेशन ना हो। आपके ब्रेन के जो थॉट्स हैं वो थॉट्स हो कि आप खुले मन से अपने विचार को किसी भी व्यक्ति के सामने शेयर कर सकें। अगर यदि आपका कोई भी विचार जो आप अपनी जवान बहन से शेयर नहीं कर सकते, अपनी माँ से शेयर नहीं कर सकते, पति पत्नी से और पत्नी पति से शेयर नहीं कर सकती, तो इसका मतलब उन विचारों के अंदर सफाई की आवश्यकता है। दूसरा, हम जानवरों से प्रेरणा लें, क्योंकि सुकरात ने कहा वी आर द सोशल एनिमल।
वो भी साफ करके बैठता है। हम अपने आसपास के समाज को क्लीन करें। अगर यदि हमारा समाज क्लीन और ग्रीन होगा तो आज की तारीख में जो ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम है वो समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, घर में ज़्यादा एसी ना चलाएं, बिजली का प्रयोग कम करें, ज़्यादा हीटर ना चलाएं। अगर हमने इतना सोच लिया तो इलेक्ट्रिक कंजर्वेशन होगा, वाटर कंजर्वेशन होगा और आने वाले भविष्य में हम अपनी नेक्स्ट पीढ़ी को कुछ बेहतर दे पाएंगे। तीसरी बात, संस्कार। संस्कार कोई पढ़ा नहीं सकता, संस्कार ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। हम जो प्रैक्टिस करते हैं, हमारे टीचर्स की अगर यदि वैल्यूज़ हैं, हमारी वैल्यूज़ को अगर यदि आप ऑब्जर्व करके कुछ आप सीख पाते हैं, बाय अवर कंडक्ट हम कुछ आपको ट्रांसमिट कर पाते हैं, तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का ऑब्जेक्ट पूरा होता है। और हमारा विश्वविद्यालय समय समय पर जितने आपसे जुड़े मुद्दे हैं और हमारे फाउंडर जिस तरीके से यहाँ पर अपना सादगी वाला जीवन जीते हैं, मैंने अपने इस छोटे जीवन के अंदर इस तरीके से फुल ऑफ वैल्यूज पर्सन नहीं देखा। अगर मैं अपने पेरेंट्स से भी शेयर करता हूँ तो वो भी कहते हैं कि आपके जो फाउंडर हैं वो वास्तव में एक रोल मॉडल हैं, आप उन्हें फॉलो करें। तो संस्कार के लिए भी हमारी यूनिवर्सिटी यहाँ पर आपको बहुत कुछ सिखा रही है। और राष्ट्रीयता हमारा वो चीज़ है, अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन ना होता, आप डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का पार्ट ना होते, आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ना होता, आपके पास अपनी एजुकेशन पॉलिसी ना होती, तो आपके पास अपना कहने के लिए कुछ ना होता। फिर हम जी रहे होते एक बारबेटिक सोसाइटी के अंदर जहां पर कोई भी आता आपकी जमीन पे कब्जा कर लेता और रूल ऑफ लॉ ना होता, कोर्ट सिस्टम ना होता और यहां पर कोई मैकेनिज्म ना होता। तो चार पहलू जो शिक्षा, सेवा, संस्कार, राष्ट्रीयता, रोल ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात है, वहां पर हम अपना प्रयास कर रहे हैं। ज़रूरत है तो रेसिप्रोकेट आपके रेस्पॉन्स की। आपका रेस्पॉन्स तब मिलेगा जब आपने विश्वविद्यालय के आयामों के ऊपर, आपकी फैमिली वैल्यूज़ के ऊपर और आपके पेरेंट्स के ड्रीम को ट्रू करने के लिए कुछ भी कंट्रीब्यूट किया। और आज हमारे इस कार्यक्रम के अंदर हमारे जो चीफ गेस्ट हैं, हमारी मुख्य अतिथि महोदया हैं, उन्होंने लाइफ के ऑब्जेक्ट से जोड़कर जिस तरीके से आप लोगों से बात की, अगर यदि आप अपने जीवन का उद्देश्य समझ पाए, अपने ह्यूमन राइट्स को समझ पाएंगे और आप फिर अपने जीवन को प्रॉपर जी पाएंगे। तो जिस तरीके से आपने साधारण शब्दों के अंदर हमारे बच्चों को लाभान्वित किया, स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय की तरफ से मैं आपका आभारी हूँ। मैं एक बार पुनः बता दूँ कि हमारे एडीजे सर श्री उदयवीर जी, आज मुझे मालूम पड़ा ये फिजिक्स में एमएससी हैं। जिस जमाने में इन्होंने फिजिक्स में एमएससी किया, फिजिक्स में एमएससी की सीट में एडमिशन नहीं मिला करता था। और उसके बाद आप जुडिशरी में हैं, एक साइंस ब्रेन जुडिशरी में है, और उसके बाद आपकी जिम्मेदारी पूरे मेरठ के अंदर हर व्यक्ति तक सस्ता सुलभ न्याय पहुंचाने की है। और जो मैडम ने समस्या बताई, सर ने एक कमिटमेंट तो ऑफिस में कर दिया कि मैडम की एक समस्या थी, उसका समाधान कप्तान साहब तक बात पहुंचा दी जाएगी। और दूसरी बात की गई, 70% जो प्रॉब्लम्स हैं जेल के अंदर कि उनके पास कोई ऐसा नहीं है पैरोकार करने वाला, तो वहां पर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी अपने पैरालीगल वॉलेंटियर्स की तरह कमिटेड है। और पिछले 1 साल के अंदर सर को जब से मैंने देखा है, जो सर का कंट्रीब्यूशन है वो डायनेमिक है और एंटायरली डिफरेंट है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में आप मैडम जब 1 साल बाद जेल का पुनः भ्रमण करेंगी तो आपको इस समस्या के अंदर भी एक विशेष परिवर्तन देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से हमारे एडीए सर ने सेक्स, ट्रांसजेंडर और अदर जेंडर्स को टच किया, मैं शायद इस बिंदु को अछूता छोड़ देता। तो उस तरीके से आप समझ पा रहे हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस में मैन वीमेन तक सीमित नहीं है, मैन वीमेन ट्रांसजेंडर तक सीमित नहीं है, उन सभी सोसाइटल प्रेफरेंसेस बेसिस पर जो हमारा सेक्सुअल ओरिएंटेशन है उन सभी को टच करता है। और आपने जिस तरीके से रोल ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और समाज के प्रति छात्रों के कर्तव्य को बताते हुए हमें लाभान्वित किया, हम स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय की तरफ से आपके आभारी हैं। सर ब्लड बैंक के न केवल इंचार्ज हैं, बल्कि ब्लड बैंक के अंदर सर की उपस्थिति रहना 100% मैंडेटरी है। पैथोलॉजी के सर हैं। और जब मैंने सर को बताया सर आज के इस कार्यक्रम के अंदर आना है, अचानक कुलपति महोदय को कहीं जाना पड़ा है, तो सर ने कहा नहीं, ये मेरे रुचि का विषय है, मैं ज़रूर आऊँगा। और वहाँ पर आपने मेरा निवेदन एक्सेप्ट किया और यहाँ पर हमें आशीर्वचन से लाभान्वित किया। मैं आपका आभारी हूँ।
ये बात सही है, हमारे डीन स्टूडेंट वेलफेयर बहुत कम बच्चे जानते हैं, लेकिन आज हमारे मुख्य अतिथि महोदया के कारण मैंने सर को जबरदस्ती बुला लिया। सर एक दूसरे कार्यक्रम में बिजी थे, आप यहाँ पर आए और आपने जो छात्र छात्राओं को जिस तरीके से उनको सरल शब्दों में 2 लाइनों में उनसे उनको जोड़ने की बात कही, हम आपके आभारी हैं। और इस कार्यक्रम की एक एक डोर को जोड़ने का जो तरीका था वो डॉक्टर रीना मैडम ने अपनी टीम के साथ किया। अगर यदि मैं इनके टीम के एक एक सदस्य का आभार व्यक्त नहीं करूंगा तो मेरे पार्ट पर ये वोट ऑफ थैंक्स बेईमानी होगा। तो मैडम, आपके टीम के वो मेंबर्स जो यहाँ बैठे हैं, आप और जो मेंबर यहाँ नहीं हैं, मैं स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय की तरफ से ना केवल सबका आभारी हूँ, बल्कि मैं निवेदन करूँगा आप अपनी टीम के साथ एक जॉइंट सेशन सभी छात्रों का ऑर्गेनाइज करें ताकि बच्चे समझ पाएँ जेंडर एंड सेक्स के बीच में डिफरेंस, क्योंकि हम ट्रेनिंग देने के लिए जाते हैं, बहुत से लोग नहीं समझ पाते हैं। इसके साथ आप सभी यहाँ पर छात्र छात्राएं, कॉलेज रिप्रेजेंटेटिव्स, फैकल्टी मेंबर्स, आप अपना बेशकीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए, मैं आपका आभारी हूँ। आभार सरकार का भी, क्योंकि सरकार की तरफ से यूजीसी, एआईसीटी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, इन सभी की तरफ से डिफरेंट लेटर्स आए कि हम आज के इस कार्यक्रम को आप लोगों के साथ साझा करें। और आपका विशेष आभार मैं व्यक्त करूंगा जब आप लोग आज की यहाँ की कुछ बातों को कैरी करके अपने समाज, अपने घर, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। साथ में आभार उन सभी इनविजिबल पावर्स के लिए जिसके कारण आज का कार्यक्रम मुमकिन हो पाया, और वो पर्दे के पीछे उन लोगों के लिए विशेष आभार जिन्होंने इस कार्यक्रम में सहयोग दिया और यहाँ पर हमें पर्दे के सामने नहीं दिखाई दे रहे हैं। कोई छूट गया है उसके लिए क्षमा याचना। आप सभी को विशेष आभार। मात्र 2 मिनट का कार्यक्रम बचा है, मैं 2 मिनट के लिए आप लोगों से फिर से पेशेंस की उम्मीद करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय सुभारती। Thank you, sir. As we mark this significant occasion, it is now time for an act of unity and commitment, the Human Rights Pledge. This pledge is a powerful reminder of our responsibility to uphold equality, dignity and justice for all individuals, regardless of their background, gender or belief. Now, I request Ms. Anna Sisodia Ma'am, Assistant Professor, Faculty of Law, for a Human Rights Pledge. Jai Hind to all the respected dignitaries on the dais, off the dais. I request everybody to kindly stand up for the pledge. On a count of 1, 2, 3. I do hereby swear that I will follow, preserve, protect, and defend human rights, meaning the rights relating to life, liberty, equality, and dignity of the individual, guaranteed by the Constitution or embodied in the UDHR, adopted by the UN General Assembly on 10th December 1948, and such other covenants as the central government may specify as enforceable by courts in India from time to time, that in the course of performance of my duties, I shall spread awareness of human rights, that I shall act against and or report to the concerned authorities any violation of human rights or abatement thereof, in the prevention of such violation by a public servant that comes to my notice. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Subharti. सावधान उत्तिष्ठ, दक्ष राष्ट्रगान कुरु। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे
तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की। आरंभ।